So today we are going to discuss the architecture of the database management system. So different authors have given their different versions of the database architecture, and we are going to discuss one. The reference of the same has been given at the bottom कि इसको हमने कहाँ से लिया है. So one thing to keep in mind is there is no need to follow the arrows that may get a little complicated. हमें सिर्फ इतना समझना है कि how many types of layers or components are there जिसके थ्रू हम लोग इस आर्किटेक्चर को समझेंगे. तो at the top what we have is the users. ये जो आप सबसे ऊपर एक लेयर देख रहे हैं हम लोग इनको यूजर्स बोलते हैं. Okay, so how many types of users we have is a simple teller or a web user. जैसे आप एक बैंक में जा रहे हैं और एक टेलर कौन होता है एक्चुअली. टेलर वो बंदा है जिसको आप जाकर अपना एक स्लिप देते हैं एंड आस्क्स हिम कि आई वांट टू विड्रॉ सो मच ऑफ कैश और आई वांट टू डिपॉजिट दिस मच ऑफ कैश. दैट पर्सन इज कॉल्ड अ टेलर. और यहीं से एक जो आपका टर्म था वो आया था, दैट इज एटीएम, दैट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन. सो यू डोंट नीड अ फिजिकल टेलर, यू कैन ऑटोमेटिकली डू दैट. आज की डेट में अगर आप अपनी मेरी बात करेंगे तो वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वेब यूजर्स. तो मैं भी एक यूजर हूँ और मैं अपना मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से ही सारी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर पाता हूँ. Basically, this category of a person is the actual consumer of the database management system and also can be referred to as the customer. Next comes in this category your application programmers. Obviously, the programmers who deal with the development of database management system. So these are the people who develop the database management system. They are expert in different technologies that lead to the development of front end, client, back end, to security, to everything. That is the responsibility of the application programmers. Now this is the most in demand category of database management system users. While I say most in demand because the number of availability and the number of requirements are very high as compared to the availability. What do these sophisticated analysts do is that we have a database available with us, and the database consists of a lot of data, but the data has absolutely no meaning because it is so much. And what does these analysts do is they derive the information from it, and that information can be in the form of different visualizations means they can be charts, graphs, or anything. And that visualization or that piece of information helps in decision making. Should I go for this decision or that decision? What are the current sales and many other things? They all are actually decided by, or you can say suggested by, the data analysts. So they basically don't deal with the day-to-day working of the database. इनका day-to-day working के साथ कोई लेना देना नहीं है. जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, डेटा इकट्ठा हो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड. बट व्हाट दे डू इज कि जो भी डेटा इकट्ठा हो रहा है उसको फिर एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. द लास्ट इज द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ दिस एडमिनिस्ट्रेटर इज बेसिकली कंसर्न्ड विद क्रिएटिंग द डेटा definitions. Now, what do I mean by data definitions? Data definitions means they are basically dealing with creating the structure or the schema of the database. They basically deal with granting, you can say, powers to the users. Okay,
they actually create the users. So all these are the responsibilities of the database administrator. ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाना, स्कीम बनानी, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना, यूजर्स कितने होंगे, कितनी कैटेगरी के यूजर्स होंगे, उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी उस डेटाबेस के ऊपर काम करने की. सो दे ऑल आर डिसाइडेड बाय द upper layer of database administrator. So with this we come to the end of what we mean by users. तो यूजर हमारे आर्किटेक्चर में सबसे ऊपर वाली लेयर है. अब यूजर को अगर आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसे एक इंटरफेस की जरूरत है. सो बेसिकली दिस लेयर एक्चुअली एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस. ठीक है, किस चीज के थ्रू ये लोग इंटरेक्ट करेंगे? तो इसमें सबसे इजी क्या है कि एक वेब यूजर को एक एप्लीकेशन इंटरफेस चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा पेटीएम है आपका, बैंकिंग के लिए अगर मैं HDFC यूज करता हूं तो जैप है. सो बेसिकली दीज आर द एप्लीकेशन इंटरफेसेस जिनकी हेल्प के थ्रू मैं इंटरेक्ट कर सकता हूं डेटाबेस के साथ. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे? दे विल इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोग्रामिंग टूल्स. जैसे कि हो सकता है कि दे आर यूजिंग MySQL, दे आर यूजिंग Oracle or some other tool like Java with JDBC. So obviously one of the tools is enough, लेकिन कौन सा टूल होगा that is their choice. But we require, हमें ज़रूरत है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो प्रोवाइड करेगा इंटरफेस जिसके थ्रू आपका प्रोग्रामर इंटरेक्ट कर सकता है. द नेक्स्ट वन इज सोफिस्टिकेटेड यूजर. मैंने आपको बताया यूजर क्या करता है, डेटा अवेलेबल है उससे रिपोर्ट्स तैयार करता है. रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए उसको बेसिकली क्या चाहिए? क्यूरी टूल्स. क्यूरी मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन. क्यूरी मीन्स की tools means basically the tools that helps in efficient you can say efficient gathering of information, important information. तो हमारे पास एक बहुत सारा डेटाबेस पड़ा है. मैं जानना चाहता हूं कि what are the sales of a particular you can say product at particular location for this month. पिछले मंथ क्या थी, उसका ग्राफ क्या है, कैसे आगे बढ़ रहा है या नीचे को जा रहा है. सो ऑल दिस कैन बी क्यूरीड बाय द sophisticated user with the help of query tools. The last one is administrative tools. ये एक तरह का डैशबोर्ड होता है. डैशबोर्ड की हेल्प से वो अपनी जो कमांड्स हैं उनको रन कर सकता है. और बेसिकली किस तरह की कमांड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, स्कीमा बनाना, यूजर्स को क्रिएट करना और अपना ग्रांट करना, अपने पावर्स को ग्रांट करना, प्रोविजंस को ग्रांट करना. तो दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द database administrator. So we have discussed the two layers so far. One are the users, one is the interface. Now let us see what is remaining. Remaining are the two types of processors. One processor deals with whatever is coming from the user, उसको किस तरह से process करना है, and that is called the query processor. And the second one deals with how the things will be stored in the actual hard disk or your storage device, and that is why this category is known as storage manager. So broadly हमारे पास क्या अवेलेबल है? हमारे पास यूजर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास इंटरफेस अवेलेबल है, उसके बाद आता है हमारा क्यूरी प्रोसेसर, उसके बाद हमारा आता है स्टोरेज मैनेजर, एंड देन एट द बॉटम इज द एक्चुअल स्टोरेज डिवाइस जहां पर आपका सारा का सारा डेटा जो स्टोर किया गया है. सो एट दिस मोमेंट हम लोग कहां पर हैं? क्यूरी प्रोसेसर. तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि क्यूरी प्रोसेसिंग जो है वो कैसे हो रही है.
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है? उसका काम है क्रिएट करना, स्कीमा को, क्रिएट करना यूजर्स को, और वो ये सारे जो काम है वो करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल इंटरप्रेटर विच इज कॉल्ड डीडीएल। ये आप अपनी लैब में भी समझेंगे। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एंड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का काम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना या क्रिएट करना ही होता है। सो आई होप द डिफरेंशिएशन विल बी वेरी क्लियर टू यू। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीडीएल को यूज करें। नेक्स्ट कम्स इन दिस कैटेगरी इज डीएमएल। What does DML stands for? DML stands for Data Manipulation Language. देखिए, जहाँ तक डेटा डेफिनेशन की बात है, वो डील करता है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ये मेरा टेबल है, ये इसके इतने एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक टेबल है स्टूडेंट, उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होंगे? उसका नेम, रोल नंबर, उसका फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज, 10+2 मार्क्स, 10th मार्क्स, सो मैनी थिंग्स। उसकी डेटा टाइप क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, ऑल दीज आर डिसाइडेड अंडर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। लेकिन डेटा के साथ, एक्चुअल डेटा के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। मीन्स उसके अंदर एक रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड है, उसको ऐड करना है, उसको मॉडिफाई करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DML। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करती है? इट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। मींस उसको इंसर्ट करना, उसको डिलीट करना और उसको मॉडिफाई करना। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DML क्यूरीज। द नेक्स्ट इज कंपाइलर एंड लिंकर। इसको ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन प्रोग्रामिंग एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंपाइलर एंड अ linker. Basically, the programmer is going to use this to create your application, and once the program is compiled or linked, then what you get is the application program object code. Okay, so basically here what we are getting is we are getting the actual application जिसको हम लोग यूज करते हैं। Is it right? And what is available here at the bottom is basically an engine which helps to evaluate, which helps to optimize these queries. आप अगर प्रैक्टिकली कोई बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। yesterday only I had a discussion with one of the experts. He works for SBI cards. He works for SBI cards. You know, so much is happening at the back end. लोग जब अपना कार्ड पंच करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ ट्रांसैक्शन गोइंग ऑन। ट्रांसैक्शन मे बी सक्सेसफुल और इट मे बी अ फेलियर। नाउ एज पर द RBI गाइडलाइंस, जब एक ट्रांसैक्शन फेलियर होती है तो इमीडिएटली एक ईमेल और एक SMS और सर्टेन केसेस में कॉल भी जाता है दैट क्या आपने ट्राई किया था इस कार्ड के साथ? अगर नहीं था, वो उसको फ्रॉड जो है वो करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ होता है एट द बैक एंड, और रिस्पॉन्स टाइम कितना है। ही वाज सेइंग दैट दे वांट कि जैसे ही फेलियर होता है विद इन फ्यू सेकेंड्स वो जो मैसेज है वो चला जाए। इट इज सो डिमांडिंग। कई बार ही सेड कि वी हैव सर्टेन डेटा अवेलेबल विद अस रिगार्डिंग दीज आर द नंबर ऑफ फेलियर्स, दीज आर द नंबर ऑफ सक्सेस। व्हेन दे रन अ क्यूरी कि हमें ये वाली डिटेल्स चाहिए, दैट क्यूरी समटाइम्स इवन रन फॉर 6 to 7 hours। यानी उस क्यूरी को रिस्पॉन्स देने में देयर आर मिलियंस ऑफ एंट्रीज, और उस पूरी डाटा को फेच करने में 6 से 7 घंटे भी लग जाते हैं। क्या हम लोग इस टाइम को
या जितने वो रिसोर्सेज लेती है उसको कम कर सकते हैं. दैट कैन ओनली हेल्प विथ प्रॉपरली इवेल्युएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द क्यूरीज. ठीक है. सो with this we are able to understand what is a query processor. Now we are going to move towards the next one, which is called the storage manager. Not too difficult, basically deals with the storage. ट्रांसैक्शन मैनेजर, मैंने आपको एग्जांपल दिया है. ट्रांसैक्शन क्या होती है? ट्रांसैक्शन मैनेजर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप अगर एक पोस्ट पेड प्लान यूज कर रहे हैं तो आप पे पर कॉल यूज कर रहे हैं या कोई और चीज यूज कर रहे हैं, आपको हैरानी होगी कि कैन वी गेस हाउ मेनी कॉल्स आर एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ? तो मैं आपको बता सकता हूं कि अबाउट बिलियंस ऑफ फोन कॉल्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. And the transaction manager of every company, they keep record of all calls. ऐसा नहीं है कि उन्होंने को बोला कि चलो भाई 1 बिलियन एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हैं, अगर इसमें से 1000 एंट्रीज रह भी जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है. ऐसा नहीं हो सकता. Just imagine the amount of calling that happens in one day, and each and every transaction is being recorded. And the pressure on the system is humongous. So responsibility किसकी है? ट्रांजैक्शन मैनेजर की, टू ensure कि वो एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करता है that is able to take or record all the transactions. Next is authorization and integrity manager. In the very first lecture मैंने आपको बताया था authorization basically means the security parameter, and integrity basically refers to the correctness of the system. So this is the responsibility of the manager to ensure both. Next is file manager and the buffer manager. They basically both store with how the data will be actually stored on the disk. File manager deals with the permanent storage in the form of files, and the buffer manager basically deals with the temporary buffer space जो वो provide करता है. So now let's come to the end of the architecture. We are reaching at the right at the bottom. That is the disk storage. Actually में है तो सब कुछ यही, ऊपर तो सब कुछ फैसिलिटेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारी है, जो सब कुछ हमारा है, वो इसके अंदर पड़ा है. तो इसमें अब हम समझते हैं कि क्या क्या पड़ा है. इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है. दिस इज अवर एक्चुअल डेटा. दिस इज अवर एक्चुअल डेटा. इसको किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं जो अभी तक हमने समझी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. दिस इज द एक्चुअल डेटा जो ग्रो कर रहा है डेली. कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं और डेली इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है. सो दिस इज अवर एक्चुअल डेटा. नेक्स्ट इज अवर डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी क्या सेव करती है? डेटा डिक्शनरी सेव करती है आपका मेटा डाटा. What is the definition of metadata? The definition of metadata is data about data. यानी ये जो आपका डेटा पड़ा है, इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये डेटा है क्या, कितना है, कैसे है, लॉग्स क्या है. सो हमारा एक्चुअल डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन सेव की जाती है, दैट इज कॉल्ड द मेटाडाटा. दैट मीन्स डेटा अबाउट डेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपनी में शिफ्टिंग होती रहती है, तो द पीपल दे गेट द नॉलेज ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेटा डिक्शनरी. तो यहां से डेटा डिक्शनरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द मेटाडाटा. स्टैटिस्टिकल डेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डेटा. तो ये मैं आपको बताता हूं. लेट अस सपोज वी हैव अ डेटाबेस दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 टेराबाइट्स. आप टेराबाइट का मीनिंग समझिए कि कितना मैसिव होगा ये डेटाबेस. और एकदम से हमारे लेट से हमारे मैनेजर ने हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड दैट इंफॉर्मेशन मे रिक्वायर 6 to 7 hours टू प्रोसेस.
नो, मैनेजर वुड ऑब्वियसली गेट वेरी अपसेट कि आपको मालूम था कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने अभी मांगी है, तो आपने अभी सीक्वल क्यूरी रन की है, अब ये डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा? तो व्हाट हैपेंस इज कि जब हमारा डेटा कैलकुलेट हो रहा है तो हम लोग उसमें से कुछ डेटा जो है प्री कंपाइल्ड स्टैटिस्टिकल फॉर्म में साथ साथ में सेव करते रहते हैं। जैसे आपकी सेल्स है तो सेल्स में तो ऐसे 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 एंट्री आती रहेगी, लेकिन स्टैटिस्टिकली क्या है कि इसका मीन कितना है, इसका टोटल सम कितना है, इसके और भी जो सेंट्रल मेजर्स होते हैं, मीन मीडियन मोड या डिस्पर्शन होती है, वो सारे के सारे साथ में ही कैलकुलेट होते रहते हैं और कई केसेस में साथ साथ में चार्ट्स भी बनते रहते हैं। क्यों बनाते रहते हैं हम लोग ये सारा डेटा साथ में, डुप्लीकेट डेटा क्यों बनाते रहते हैं, क्यों प्रोसेसिंग चलती रहती है? वो इसलिए चलती रहती है बिकॉज वी वांट टू ऑप्टिमाइज द क्यूरी। हम लोगों को क्यूरी को ऑप्टिमाइज करना है। जब मैनेजर हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो हमें उसको 6-7 आवर्स नहीं लगाने हैं, हमें उसे जल्दी आंसर देना है। तो हम लोग जो एक्चुअल डेटा अवेलेबल है साथ साथ में ही उसका स्टैटिस्टिकल डेटा सेव करते रहते हैं। द लास्ट वन इज कॉल्ड द इंडेक्सेस, इसको हम लोग इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज इंडेक्सिंग। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो जब हम लोग सर्च करते हैं तो सर्चिंग जो है वो कितना टाइम लेती है, दैट विल डिपेंड अपॉन वेदर योर सिस्टम इज इम्प्लीमेंटिंग द इंडेक्सिंग और नॉट। इफ योर सिस्टम इज इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, जो कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से की जाती है, then the data will be available to you in a much faster manner. Without indexing, sometimes the data can be very slow to fetch. So indices means basically the indexing to improve the performance of your system. I request that don't go with the figure right now. Don't get yourself very complicated, things very complicated with the figure. The figure may sound very complicated. Just be aware that how many, you can say, layers are there in the architecture. This is the user layer, this is the interface layer, this is the query processor, this is the storage manager, and this is the disk. How the lines are going, if you read it, if you look at it 5 or 6 times, I am sure you will be able to logically drive these lines. याद करने की बजाय आप लॉजिकली ड्राइव कर पाएंगे कि ये जो कनेक्शंस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। Okay, so with the end of this is a little notes that have been given at the bottom. The next topic we are not going to start today, we are going to start tomorrow. So that is basically to try and understand how many different types of SQL commands are there, हम लोग उनको categorize कैसे करते हैं। And in the end we will have a lab session, जिस lab session में हम लोग SQL commands को करेंगे। So today I am having 3 or 4 minutes further before I go for some meeting. I will share how to you can say write this code. हम क्या करेंगे? अब सबसे बड़ा चैलेंज जो आने वाला है वो यही आने वाला है कि हमें हमारा प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एंड लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू बेसिकली आस्क मी हाउ टू इंस्टॉल टूल, हमें वो टूल यूज कैसे करना है। तो इसका सबसे बेसिक जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है, दैट इज टू यूज द ऑनलाइन SQL एडिटर। जब आप गूगल के ऊपर ऑनलाइन SQL एडिटर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस आएंगी। मान लीजिए मैं w3schools.com का SQL एडिटर यूज करना चाहता हूं। प्लीज टाइप यस इन द चैट विंडो अगर आप ये W3 Schools का एडिटर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। प्लीज टाइप यस इन द चैट विंडो अगर आप देख पा रहे हैं। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस एडिटर। इसमें कुछ भी नहीं है, कमांड्स हम लोग सीखेंगे। ये आप लेफ्ट हैंड साइड पर क्या पर भी आप आई एम श्योर देख सकते हैं कि ध्यान से देखिए, हाउ मेनी टेबल्स आई हैव हियर।
The last table I have in my database is an SS table. तो ऐसा करते हैं ना, एक स्टूडेंट टेबल बनाकर देखते हैं कि क्या मैं एक स्टूडेंट टेबल बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। तो इसके लिए यहाँ पर एक कमांड लगाते हैं। कमांड अभी ये मत पूछना कि कैसे हुई है, वो हम लोग लैब में सीखेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एक तो उसका नेम ले लेते हैं, एक हम उसका रोल नंबर ले लेते हैं, और एक हम उसका सेमेस्टर ले लेते हैं। ठीक है, सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, उसकी 3 फील्ड्स जो हमने ले ली हैं, हम लोग सीक्वल कमांड को रन करते हैं। तो जैसे ही सीक्वल कमांड रन हो गई है, तो अब हमें देखना है कि क्या कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि SS was our last टेबल, इसके बाद हमारे पास एक नया टेबल बन गया है हमारे डेटाबेस के अंदर, जिसका नाम है स्टूडेंट। ओके, तो क्या इसके अंदर हम लोग वो थोड़ा बहुत सा एंट्रीज कर सकते हैं, थोड़ा डेटा मैनिपुलेशन करके देखते हैं कि क्या हम इसके अंदर एंट्रीज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, 0। तो चलिए इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट, वैल्यूज, सबसे पहली वैल्यू क्या थी, उसका नेम था, देन उसका रोल नंबर था। अभी आप मेरे को अपना सीनियर मान लीजिए, तो मैं 7th सेमेस्टर में चला जाता हूँ। तो क्या हम इसको रन करें? अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर एक वैल्यू चेंज हो रही है, जो हमें बता रही है कि आपके डेटाबेस के अंदर 1 रिकॉर्ड जा चुका है। तो अब मैं अपना एक क्लासमेट भी एंटर करवा लेता हूँ। 2 रिकॉर्ड हो गए। ये कौन से 2 रिकॉर्ड्स हैं? तो ये आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, हम लोग ऑनलाइन ही आपका सारा लैब वर्क करेंगे। आप यहीं से बनाते रहिए, कमांड्स चलाते रहिए, कमांड्स को सेव भी करते रहिए, रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, तो ये बेटर चलता रहेगा। सो प्लीज टाइप यस इन द चैट विंडो अगर आप पूरा का पूरा ये जो प्रोसीजर थे वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर पाए। सो आई कैन कंटिन्यू दिस इन द फर्दर लैब्स। जो मैंने कमांड्स लिखी हैं, जो आउटपुट्स आई हैं, इफ यू आर एबल टू सी दिस ऑन द लैब। ओके, so with this we come to the end of the lecture today, and we will have our next lecture tomorrow. Till then, it is thank you.